हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। आज के इस वीडियो में हम नवंबर 1 2021 का डेली हिंदू एनालिसिस करेंगे। यू कैन एक्सेस आवर डेली वीडियो ऑन हिंदू एनालिसिस एट मनु लॉ क्लासेस। प्लीज सब्सक्राइब टू इट। नाउ आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इट इज़ अबाउट द G20। सो G20 का समिट हुआ था इन रोम, इटली। आफ्टर दैट our prime minister is going to fly to Glasgow for conference of party 26th meeting on climate change. So we will do some important outcome of this meeting, and then we will study the brief background of G20 and how it is different from G7. So आज के न्यूज़ को हम कंटिन्यू करते हैं. So now see over here, the first important thing from exam point of view is G20 Sherpa. So who is the G20 Sherpa of India? So Commerce and Industry Minister Piyush Goyal, he was the G20 Sherpa of G20 Summit. Sherpa क्या होता है? Sherpa means the representative of the Indian government at G20. The next is no time-bound agreements was reached as leaders of the world's top economies ended the summit in Rome. ठीक है, तो एक जो एग्रीमेंट होता है, कोई टाइम बाउंड एग्रीमेंट इन्होंने साइन नहीं किया। जैसा कि हम जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की डिस्कशन होने वाली है COP26 में। उसके बाद कोविड-19 के आफ्टर इफेक्ट से पूरा वर्ल्ड गुजर रहा है, बट देन ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट देयर वाज नो टाइम बाउंड एग्रीमेंट। बट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस आर एज यू विल फॉलो। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट है रिकमिटिंग टू प्रोवाइडिंग $100 बिलियन अ ईयर टू काउंटर क्लाइमेट चेंज। देखिए, रिकमिटिंग कमिटमेंट है, ये भी टाइम बाउंड नहीं है। ये $100 बिलियन पर ईयर, दिस इज द क्लाइमेट फाइनेंस इशू, जहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज का ये डिमांड है दैट अंडर द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट द डेवलप्ड कंट्री शुड प्रोवाइड $100 बिलियन फंड अ ईयर फॉर अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन टू डेवलपिंग कंट्रीज सो दैट दे कैन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज टू ग्रीन इंडस्ट्रीज। द नेक्स्ट इज दैट पुशिंग फॉर ग्रेटर वैक्सीन इक्वलिटी टू फाइट द कोविड-19 पेंडेमिक। ये जो इशू है, it is about getting the TRIPS waiver. TRIPS waiver. So what is TRIPS? Trade related intellectual property rights. ये WTO के अंडर आता है। Earlier South Africa and India they demanded from World Trade Organization that there should be TRIPS waiver on manufacturing of vaccine. अगर इंडिया और साउथ अफ्रीका को ये TRIPS का waiver मिल जाता है, means the COVID-19 vaccines are not included in TRIPS, then vaccines like Pfizer, Moderna, which is manufactured in foreign countries, they can also be manufactured in India, and hence the vaccine availability will increase in developing countries, and India will be in a position to export these vaccines to other countries under vaccine Maitri policy. Now next commitment जो है it is about G20 countries, they have committed to end international financing for all new coal plants by the end of 2021. ओके, तो 2021 के बाद G20 के जो कंट्रीज हैं, they we are not going to fund any new coal plants, but they have made no mention of domestic commitments on ending coal power generation. मतलब अभी का जो कोल पावर जनरेशन है वो कब ख़त्म होगा, इसके लिए कोई कमिटमेंट नहीं दी गई है। उसके बाद द नेक्स्ट इज अबाउट द सेम विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, that there was a recognition among the G20 countries of more vaccines by the World Health Organization under a One Health approach for the world, and to provide finance and technology for vaccine production at mRNA hubs in South Africa, Brazil and Argentina. The next is to mobilize more international public-private financing for green project. देखिए, हमने पहले एक $100 बिलियन अ ईयर की बात की, वो फाइनेंस। अ सेकेंड इज नाउ दिस फाइनेंस इज फॉर प्राइवेट सेक्टर फॉर ग्रीन प्रोजेक्ट्स। नाउ addressing the media, G20 Sherpa and Commerce Minister Piyush Goyal has hailed the communique for acknowledging India's concerns on climate justice. Now friends, what is this climate justice? Climate justice is the concept which is based on the United Nations Framework Convention on Climate Change, which calls for common but differentiated responsibility और CBDR। इसका मतलब होता है कि अगर हम हिस्टोरिकल एमिशंस की बात करें, मतलब 1750 से लेके अब तक, तो उसमें डेवलप्ड कंट्री का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इन कार्बन एमिशन। डेवलपिंग कंट्री का बहुत कम रहा है बिकॉज दे वेर इंडस्ट्रियलाइज्ड ऑलमोस्ट आफ्टर 2 सेंचुरी
after the Western countries were industrialized. So all the countries, they have responsibility to control the carbon emission, to limit it, but the responsibility of developed countries will be more than the developing country, because for the simple reason that historical emissions of carbon dioxide by developed countries is more. Now we will move to page 8 where we will see two news related to climate. तो उसके पहले हम यहाँ पे एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. इंडिया रेड्यूस एमिशन लिस्ट. तो जब 26 यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इन ग्लासगो जो होने जा रहा है, इंडिया ने एक वेबसाइट को एंडोर्स किया है विच इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय इंडियन क्लाइमेट एक्सपर्ट्स एंड दे हैव डेवलप्ड द लिस्ट ऑफ हिस्टोरिकल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस ऑफ डेवलप्ड कंट्री. हिस्टोरिकल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन मतलब 1759 से लेके अब तक अगर हम देखेंगे तो किस कंट्री ने कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट किया हुआ है. द सेम कॉन्सेप्ट इज बीइंग अप्लाइड कि इंडिया को अभी नेट जीरो एमिशन अचीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. सो इंडिया वांट्स दैट डिस्कशन शुड बी बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस एंड डेवलप्ड कंट्री शुड डू more for achieving the net zero emission target than the developing country. हम आपको बता दें कि यूएस का जो नेट जीरो एमिशन टारगेट है वो 2050 का है, चाइना का 260 का है. सो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज उन्होंने जीरो एमिशन टारगेट दे दिया है बाय 2050. चाइना का 260 है और 2060 है, और इंडिया ने अभी तक कोई कमिटमेंट नहीं दिया हुआ है. मूविंग फर्दर वी विल सी दैट अगर हम पास्ट कुछ हाई लेवल विजिट्स की बात करें, ठीक है ना, तो क्लाइमेट नेगोशिएटर्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एंथनी ब्लिंकन, EU और UK, दे विजिटेड इंडिया एंड दे प्रेस्ड इंडिया फॉर अपडेटिंग इट्स कमिटमेंट, दैट इज NDC, to include its target of 450 gigawatt of renewable energy by 2030 and then to set a date for ending the use of coal in power plants. But India ने ये एग्री नहीं किया and India has called that developed countries should achieve much quicker emission cut so that there is more carbon space for the developing countries to pursue their development agenda. This is also the part of climate justice. For example, अगर मैं अब बात करूँ कि आज concentration of CO2 कितना है एटमॉस्फेयर में, then it is 412 parts per million. What is the safe limit which the atmosphere can hold? That is 350 parts million. So अगर हम देखेंगे इस 412 में डेवलप्ड कंट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, सबसे टॉप पे US से है. ओके, उसके बाद अगर हम देखें कि नेट जीरो एमिशन टारगेट इज टू बी रीच बाय 2050, बट देन ऑल्सो कंट्रीज़ लाइक US, चाइना एंड अदर कंट्रीज़ ये इतना ज़्यादा एमिट कर चुके रहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कि जो रिमेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड बजट है अबाउट 350 to 450 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें से ज़्यादा प्रपोर्शन विल बी कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग कंट्रीज ओनली. सो द कार्बन स्पेस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया विल बी वेरी लेस एंड दे विल बी फोर्स्ड टू लिमिट देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस. द नेक्स्ट प्रॉब्लम विच हैज़ बीन हाईलाइटेड बाय आवर कॉमर्स मिनिस्टर इज कि इंडिया इज लीडिंग इन सोलार एनर्जी बट देयर इज़ नो एडिक्वेट टेक्नोलॉजी to absorb large amount of clean energy into grids. Grids जो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करने में मदद करते हैं, तो जो हम सोलार एनर्जी से जो एनर्जी जनरेट कर रहे हैं उसको हम ग्रिड में डालने में एक तकलीफ हो रही है. ठीक है, तो इसकी वजह से जो इनका एडॉप्शन है वो काफ़ी कम है. द नेक्स्ट इज द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैज सेड दैट द फेलियर ऑफ G20 समिट टू सेट अ स्पेसिफिक डेट फॉर नेट जीरो कार्बन एमिशन हैज़ लेफ्ट मैनी होप्स अनफुलफिल्ड. The next is ahead of COP26 Indian site highlights emission gap. तो इंडियन क्लाइमेट साइंटिस्ट लोगों ने एक ग्रुप बनाया है that is called as Climate Equity Monitor and it is aimed at monitoring the performance of Annex 1 parties. जो क्योटो प्रोटोकॉल हम पढ़ते हैं उसमें दो पार्टीज थी, Annex 1 parties which consisted of developed countries and non-Annex 1 parties which consisted of developing countries. So this Annex 1 parties is the one who were called for reducing the emissions. तो ये पाया गया है कि they have emitted more. This website was conceptualized and developed by the Climate Change Group at MS Swaminathan Research Foundation, Chennai, and Natural Science and Engineering Department at National Institute of Advanced Studies, Bengaluru.
So they are creating a database which aims to highlight the disparity between the emissions of developed and developing countries such as United States, Canada, Australia, Western Europe, shown as a having a net carbon debt. मतलब कि इनकी जो पॉपुलेशन है अगर हम उसके हिसाब से देखें तो इन्होंने बहुत ज़्यादा एमिट किया है, और इंडिया एंड चाइना दे आर इन नेट क्रेडिट. सो दिस विल हेल्प इन क्लाइमेट जस्टिस. सो इंडिया कैन आस्क फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू हैव मोर डीप एमिशन कट, जैसे कि हम पहले से जानते हैं. सो इफ़ यू सी द IPCC रिपोर्ट, सो इट कॉल्स फॉर 45% एमिशन कट from 2010 level by 2030. Now coming to the G20 basics. So G20 is a group of developed and developing countries. There are 19 countries and European Union, which makes it G20. It was formed in 1999, and since after 2008 financial crisis, annual summit of the head of government, finance minister and central bank takes place. European Union is represented by European Commission and European Central Bank. The next news is from मनरेगा. There is an editorial also over it. So यहाँ पे मनरेगा में हमने पहले ही देखा था कि हमने एक इशू आई थी कि इस बार मनरेगा में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एलोकेशन है, बजटरी एलोकेशन है, वो इट वाज अराउंड 70,000, 73,000 एंड लास्ट ईयर इट वाज अराउंड 1.2 लाख करोड़. सो बिकॉज ऑफ द पॉसिटी ऑफ फंड मनरेगा में बहुत जगह पेमेंट हुआ नहीं है. नाउ अब हम देखें एक और प्रॉब्लम नया आया है. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट स्कीम, द टेंशन इज़ रनिंग वेरी हाई, क्योंकि ये पाया गया है कि पेमेंट्स जो नॉर्मली 7 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, सो देयर इज़ सम कास्ट एंगल इन्वॉल्व इन इट. कहीं कहीं पे SC STs को डिले हुआ है पेमेंट होने में, दैट दे गॉट द रिसीव द पेमेंट बिटवीन 15 to 20 days. Okay, so this is the news over here. And if we just go to the editorial, so the editorial has discussed the earlier issue. तो अगर हम earlier issue देखें तो यहाँ पे पूरा बताया गया है कि करीब करीब 21 out of 35 states and UTs they have utilized 100% of their allocated funds under the Mahatma Gandhi Rural Employment Credit Guarantee Scheme for this financial years. अगर हम allocation की बात करें तो एब्सोल्यूट टर्म में अगर देखें तो इस बार जो है एलोकेशन 50,000 करोड़ ज़्यादा था टू मीट द डिमांड फॉर द वर्क, बट द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स फॉर स्पेंडिंग फॉर द स्कीम हैज़ वेंट अप टू 1,11 करोड़, 1,11,500 करोड़. नाउ अगर हम कंपेयर करें तो इस बार 73,000 करोड़ का बजट दिया गया था. अर्लियर इट वाज अबाउट 1.2 लाख करोड़, 1.11 करोड़, बट नाउ if we just see that there are certain states like Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, they have utilized 130% of their respective allocations for scheme. ऐसा क्यों हो रहा है? Because we are going through COVID-19, there is migrant crisis in most of the states, so they are utilizing मनरेगा, which is a demand driven scheme for finding the employment. अब अगर ऐसे समय में अगर मनरेगा का अगर स्कीम में फंड्स रिलीज़ नहीं होता है, so it leads to a lowering of demand, especially during the festive season. So the next is that the rural development officials, they said that some of the states are artificially creating the demand, but अगर हम ग्राउंड रिपोर्ट देखें तो ऐसा नहीं है. अगर हम देखेंगे तो हमने पिछली बार भी किया था that most of the people who demanded job in मनरेगा, they could not get the job. So it is the union government responsibility to ensure that the allocation is adequate for wage payment to be done and demand to be met in the remaining part of the financial year. फिर delay in wage payment is also one of the issue in मनरेगा, which results in decline in rural consumption, which is playing a vital role in stimulating the demand in the economy, और खास करके ऐसे डाउन टर्न के टाइम इसकी बहुत ज़रूरत है. Now again let's move to the first page to see the news. Now bypolls to Kerala, Bengal Rajya Sabha seats notified. So bypolls तो क्या राज्यसभा में टोटल मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 250 है एंड 12 आर नॉमिनेटेड. ओके, 12 आर नॉमिनेटेड सीट्स. ये जो बाकी के जो 238 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के,
they are elected by the respective state legislative assemblies. So members who will be coming from Kerala, Bengal, they will be elected by the state legislative assembly of Kerala. Now the next very important news is Navy takes delivery of warship. So steel guided missile destroyer equipped with BrahMos cruise missile. पहले हम जाते हैं नेवी के दो प्रोग्राम की तरफ. One is called as Project 15B and one is called as Project 15A. So Project 15B it focuses on manufacturing Visakhapatnam class of destroyers, and Project 15A it focused on the manufacturing Kolkata class of destroyers. तो अब हम ये विशाखापट्टनम जो प्रोजेक्ट 15B है इसमें टोटल 4 शिप्स बनने वाले हैं. इस 4 शिप्स का जो नाम होगा वो सिटी के बेस पे होगा. विशाखापट्टनम, मोर्मुगांव, इम्फाल एंड सूरत. सो 4 शिप्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड, जिसमें से फर्स्ट की डिलीवरी हो चुकी है नेवी को. सो यहाँ पे प्रोजेक्ट 15B इज इम्पॉर्टेंट. स्टेट ऑफ द आर्ट स्टिल्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का मतलब होता है, स्टिल्थ मतलब रडार इसे डिटेक्ट नहीं कर सकता, गाइडेड मिसाइल मतलब कि एक बार आपने मिसाइल चला दिया टारगेट को वो हिट करेगा. फाइन. नाउ इट हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय माजगांव डॉक्स लिमिटेड एंड इट वाज डिलीवर्ड टू नेवी एंड देयर वाज 3 ईयर डिले. ओके. इसको डिज़ाइन किसने किया है? तो इट हैज़ बीन डिजाइन बाय डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन. नाउ द नेक्स्ट इज द शिप is equipped with BrahMos सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल. सुपरसोनिक का यहाँ पे मतलब होता है कोई भी ऐसा स्पीड जो स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा हो तो उसे हम सुपरसोनिक हाइपरसोनिक कहते हैं. नॉर्मली अगर 5 टाइम्स ज़्यादा है तो हम उसे हाइपरसोनिक कहते हैं. ठीक है. उससे अगर थोड़ा कम हो तो हम उसे सुपरसोनिक कहते हैं. BrahMos जो है इट इज़ बीइंग जॉइंटली बिल्ड बाय इंडिया एंड रशिया. द नेक्स्ट विल बी सरफेस टू एयर मिसाइल्स फिट ऑन दिस. ओके. द नेक्स्ट जस्ट वन लाइन न्यूज़. रेलवे के बहुत सारे स्कूल्स थे वो अब बंद होने वाले हैं. दे विल बी आइदर इंटीग्रेटेड विद केंद्रीय विद्यालय और स्टेट गवर्नमेंट एज इट विल बी फिजिबल. द नेक्स्ट इज द SBI रिपोर्ट अबाउट द इनफॉर्मल सेक्टर. सो इनफॉर्मल सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज गिग सेक्टर. यहाँ पे उसका देखिए बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया हुआ है. द इनफॉर्मल सेक्टर कंसिस्ट ऑफ ओन अकाउंट और अनऑर्गेनाइज्ड एंटरप्राइजेस एम्प्लॉइंग hired workers with a higher share of such unorganized activity being in agriculture where holdings are small and fragmented. ठीक है. One of the major difference between the formal and informal sector is कि informal sector में social security जैसी चीज़ नहीं होती. ठीक. अब हम रिपोर्ट को थोड़ा सा देखते हैं. That signaling a greater shift towards formalization of the economy, the share of the large informal sector in overall economic activity dipped sharply in 2020-21 even as informal workers continue to bear the brunt of pandemic's adverse effect. Next is that the share of the informal economy have shrunk to no more than 20% of the economic output from 52% in 2017-18. Okay. The next is कि अगर हम IMF पॉलिसी पेपर की बात करें तो IMF ने बताया था कि इंडिया का जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है इट इज़ अबाउट 53.9% ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड इट इम्प्रूव्ड मार्जिनली टू 52.4%. देखिए परसेंटेज कम हो रहा है तो भी इम्प्रूव्ड क्यों लिखा गया है? क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर इज लेस डिज़ायरेबल. अगर हम NSSO की बात करें 2014 के डेटा के बेसिस पे तो 93% ऑफ द वर्कफोर्स दे वर इन्वॉल्व इन इनफॉर्मल सेक्टर. द नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर टेक्स अ हिट. तो अगर हम देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में सो द इनफॉर्मल एक्टिविटी हैज़ टेकन अ हिट. तो इट वॉज 52.8%, अब वो 20 to 25% हो चुका है. ओके. तो हमने एक न्यूज़ भी पढ़ा था लास्ट टू लास्ट डे दैट NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये लिखा था कि बाई 17 to 18% द सुसाइड बाय द फार्मर्स स्पेशली दोज हु डोंट हैव लैंड हैज़ इंक्रीज्ड. तो इसको आप इस न्यूज़ के साथ कनेक्ट करके देख सकते हैं क्योंकि जॉब श्रंक हो चुकी है एग्रीकल्चरल लेबरर्स की. ठीक तरीके से वो देखिए कि वो भी 2018 का डेटा बता रहा था, यहाँ पे भी 2017-18 की बात हो रही है और लास्ट ईयर की बात हो रही है. तो द सुसाइड हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड. द नेक्स्ट इज अफगान नेशनल्स रिसीव अ लाइफलाइन. क्या लाइफलाइन है भाई? द लाइफलाइन इज कि भाई अफगान नेशनल्स को अब इंडिया में दे कैन टेक द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट job, the senior government officer has told.
हम एक स्पेशल वीज़ा, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ कम अप विद द स्पेशल वीज़ा विच इज़ कॉल्ड एज ई एमरजेंसी एक्स मिसलिनियस वीज़ा। ये वीज़ा किन के लिए था? तालिबान के टेक ओवर के बाद जो लोग अफगानिस्तान को छोड़ के इंडिया में आना चाहते थे उनके लिए ये एमरजेंसी वीज़ा था। तालिबान ने काबुल को टेक ओवर किया 15 अगस्त और ये वीज़ा लॉन्च हुआ अगस्त 17 के लिए। ओके, बट it was only a few visas have been given under this scheme. Now सितंबर 2 में फिर मिनिस्ट्री का एक ऑर्डर आया saying that Afghan nationals living in India on any category of visa will be granted extension of visa by foreigners registration regional registration office on gratis basis। उसके बाद एक और वीज़ा है जो 2017 में लॉन्च हुआ था विच इज़ कॉल्ड एज स्टे वीज़ा रेजिडेंशियल परमिट टू अफगान नेशनल्स ऑन केस टू केस बेसिस। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इस वीज़ा के अंदर देयर इज़ अ वैलिड फॉर 1 ईयर एंड इट इज़ स्टेट स्पेसिफिक, मतलब जिस स्टेट में दिया गया आप उसी स्टेट में रह सकते हैं एंड इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द स्टेट वेयर दे आर परमिटेड टू स्टे। उसके बाद there is a long term visa those who are from 6 minority communities, those are Hindus, Sikhs, Christians, Parsis, Jain and Buddhist, and they are allowed to open bank account. They can purchase small units to run their livelihood. The next news is stop tobacco sale to youth, says NCPCR. Now what is the news? The news says that tobacco use in all forms whether smoking or chewing is associated with severe COVID-19 casualties. उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इट हैज़ अपील टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि लॉ को स्ट्रेंथन किया जाए टू कंट्रोल टबैको स्पेशली इन यूथ सेक्शंस। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि एक्सपर्ट्स लोग कहते हैं कि अगर 21 साल तक अगर यूथ में टबैको यूज़ को अगर रोक दिया गया तो इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वो ज़िंदगी में कभी भी टबैको कंजम्पशन नहीं करेंगे, जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है। दैट्स वाई व्हाट द NCPCR हैज सेड नाउ दैट इंक्रीज द मिनिमम लीगल एज फॉर सेल ऑफ टबैको प्रोडक्ट्स फ्रॉम 18 to 21, बैन द सेल ऑफ लूज सिंगल स्टिक ऑफ सिगरेट्स बाय अमेंडिंग कोटपा 2003। ओके, एंड सी द नेक्स्ट थिंग that nearly 27% of all cancers in India are linked to tobacco usage। यहाँ पे एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए दैट हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इट इज़ द नेम इज़ प्रियांक कनुंगो। Now you have to tell me that in the comment box whether the National Commission for Protection of Child Right is a constitutional body or it is a statutory body, and if it is a statutory body then it is established under which act। The next is बूस्टर डोज नॉट मस्ट फॉर ऑल अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बूस्टर डोज सबको देने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी अपने आप एक इम्यून सिस्टम डेवलप कर लेती है आफ्टर द वैक्सीनेशन, और उसके बाद इफ़ द SARS-CoV-2 वायरस अटैक्स द बॉडी अगेन देन द इम्यून सेल्स रिकॉग्नाइज द वायरस एंड किल इट। दिस इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। द डॉक्टर्स आर सजेस्टिंग कि सिर्फ उन्हीं को दिया जाए बूस्टर जिनको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम देखेंगे हमारा जो वैक्सीनेशन स्केड्यूल था, चाहे कोविशील्ड, चाहे कोवैक्सीन, चाहे स्पुतनिक, सबको 2-2 डोज लगाए। द सेकेंड डोज वॉज इटसेल्फ अ बूस्टर डोज एंड द फर्स्ट डोज वॉज प्राइमिंग डोज। अब हम जाइडस कैडिला के न्यूज़ पे आते हैं। जाइडस कैडिला लाइकली टू रिड्यूस प्राइस ऑफ वैक्सीन। सो जाइडस कैडिला ने एक वैक्सीन बनाया है फॉर COVID-19 विच इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट DNA वैक्सीन। इसका नाम है जाइडस कोवी और इसकी जाइकोव डी, द नेम इज़ जाइकोव डी, and it is the first vaccine in India which was cleared by India's drug regulator for inoculation, मतलब vaccination of those who are aged 12 years and above। अब इसकी कॉस्टिंग की बात हो रही थी। पहले कॉस्टिंग की जो बात थी वो ₹1900 पे थी, अब ये कॉस्टिंग की बात 265 पे आ रही है। बट इसमें एक एडिशनल कॉस्ट होगा जिसको कहते हैं डिस्पोजेबल पेनलेस जेट एप्लीकेटर विच विल कॉस्ट एडिशनल ₹93। नाउ यू विल आस्क व्हाट इज दिस disposable painless jet application? So you must remember that Zycov D is a needle-less vaccine, okay, and it does not use needle but it uses disposable painless jet applicator। उसका अलग से ₹93 खर्चा है। Now see the next, that Zycov D का 3 डोज होगा, 2 डोज नहीं होगा, 3 डोज होगा, जो 28 दिन के
इंटरवल पे दिया जाएगा, मीन्स 4 वीक्स के इंटरवल पे दिया जाएगा। फिर ये वर्ल्ड का पहला डीएनए बेस्ड एंड नीडल फ्री कोविड-19 वैक्सीन है जिसको एमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला अगस्त 20 को। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट इंडस डॉल्फिन। इंडिया में 2 टाइप के डॉल्फिन पाए जाते हैं, एक इंडस रिवर डॉल्फिन, एक गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन। उसमें से जो गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन है इट इज़ अ नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। बट अभी हम इंडस डॉल्फिन की बात करते हैं। पहले ऐसा लगा था कि इंडिया में इंडस डॉल्फिन नहीं पाए जाते, बट इट वॉज डिस्कवर्ड इन द हरिके वेटलैंड इन पंजाब। हरिके वेटलैंड जो है वो सतलज ब्यास का एक कॉन्फ्लुएंस है और पंजाब में है, तारन तारन डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे पहले ये मिला था। और अब पंजाब गवर्नमेंट ने ब्यास डॉल्फिन मित्रा करके एक प्रोग्राम निकाला है वेयर अ डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स विल बी लुकिंग फॉर प्रोटेक्टिंग द डॉल्फिन एज वेल एज द हैबिटेट ऑफ डॉल्फिन। अगर हम इंडस रिवर डॉल्फिन की बात करें तो इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी दिया जाता है बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के। और इसको 2007 में इंडिया में पंजाब के हरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिस्कवर किया गया था। हरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ऑल्सो अ रामसर साइट। देन कोऑपरेटिव्स विल प्ले अ बिग रोल इन बूस्टिंग इकोनॉमी। सो कोऑपरेटिव जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9B में आता है और रिसेंटली अ सेपरेट मिनिस्ट्री वॉज एस्टेब्लिश्ड दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जिसको हेड कर रहे हैं हमारे अभी के होम मिनिस्टर श्री अमित शाह। तो उन्होंने कहा है कि अमूल ने एक रेवोल्यूशन लाया इन डेयरी सेक्टर। सो इफ़ वी वांट टू बूस्ट आवर इकोनॉमी एंड वी वांट टू अचीव द गोल ऑफ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, देन वी मस्ट डू समथिंग लाइक अमूल इन डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स। तो यहाँ पे देखिए अमूल का थोड़ा सा हिस्ट्री है जो आपको पता होना चाहिए कि अमूल को 75 ईयर्स हो गए। इट वॉज स्टार्टेड इन 1946 एज कोऑपरेटिव मूवमेंट इन आनंद, गुजरात। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अमूल का फुल फॉर्म क्या है, प्लीज़ मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ अमूल। देन October 31st, which is also celebrated as National Unity Day in India, it is the birthday of सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका फ्रीडम फाइटर में खासकर बारडोली सत्याग्रह में इनका काफ़ी योगदान था। While he was leading the satyagrahas in Gujarat, then especially during the Bardoli Satyagraha, then the women of Bardoli gave him the title of Sardar, and he played a very important role in integrating the princely states with India once India got independence. The next is Taliban leaders make rare appearance। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो हलबतुल्ला अखुनज़ादा की बात हो रही है। जब से ये एक्टिंग ये सुप्रीम लीडर जब से बने हैं तालिबान के, तब से इन्होंने अपना कोई पब्लिक एक्सपीरियंस नहीं दिया था। अब धीरे धीरे जो बाकी लीडर्स भी हैं, जैसे आपने पहले भी पढ़ा था कि जब अब डिफेंस मिनिस्टर ने पहले पब्लिक अपीयरेंस दिया, अब वहाँ के जो प्रीमियर हैं, अमीर आप कह सकते हो, नाउ ही हैज़ मेक द रेयर अपीयरेंस। नेक्स्ट इज चाइना इज़ ग्रैपलिंग विद चैलेंजेस ऑफ स्लोइंग इकोनॉमी एंड आउटब्रेक्स। तो हम दोनों चीज़ों को लें अगर, तो आउटब्रेक्स, तो चाइना में जो कोविड-19 आउटब्रेक्स है वो फिर से बढ़ रहा है एंड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कोल वहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है और इकोनॉमी भी स्लो हो रही है। नाउ UAE urges citizen to leave Lebanon as soon as possible। तो एक डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ हो चुका है UAE और लेबनान के बीच में, जब लेबनीज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जॉर्ज कोरदाई ही सेड दैट ईरान बैक्ड हाउती रेबल्स इन येमेन वर डिफेंडिंग देमसेल्व्स अगेंस्ट एन एक्सटर्नल एग्रेशन। तो यहाँ पे जो ये जो एक्सटर्नल एग्रेशन में 2 कंट्री को टारगेट हुआ है, सऊदी अरेबिया एंड UAE। हाउ? बिकॉज येमेन में there is a fight going on between Houthi rebels and Saudi-led military coalition which is supported by UAE. Now what the minister has said, somewhere his statement is supporting the Houthi rebel which goes against the Saudi Arabia and UAE support to government military coalition in Yemen. Now Japan's ruling coalition to maintain a majority। यहाँ पे जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जापान में कुछ दिन पहले न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए थे जो लिबरल पार्टी से थे, जिनका नाम था फूमियो किशिदा।
द नेक्स्ट एडिटोरियल इज़ द बिग पुश। तो ये बिग पुश क्या है पहले ये समझ लीजिए। यूएस प्रेसिडेंट, द 46th यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, ये एक बिल लाए हैं कांग्रेस में जिसका वैल्यू है $1.85 ट्रिलियन। ये बिल है, ये अपने पॉपुलेशन को सोशल सिक्योरिटी और देना चाहता है और क्लाइमेट चेंज एडेप्टेबिलिटी के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है। ये बिल प्रेसिडेंट चाहते थे कि उनके G20 और COP26 मीटिंग से पहले ही ये पास हो जाए, बट ये पास हुआ नहीं। अब हम देखते हैं कि इस बिल में क्या क्या है। अगर हम सोशल सिक्योरिटी वाइज देखें तो इट प्रोवाइड्स यूनिवर्सल प्री किंडरगार्टन, एक्सटेंडिंग एंड एक्सपांडेड टैक्स क्रेडिट फॉर पेरेंट्स, reducing health care premiums for those who are covered under ओबामा एरा अफोर्डेबल केयर एक्ट। ओबामा ने भी एक अफोर्डेबल केयर एक्ट पास किया था जिसको ओबामा केयर भी कहते हैं। तो उसके इंश्योरेंस के प्रीमियम को कम करना, reducing the waiting list for in-home care, building 1 million units of low-income housing and worker training and higher education। अब इसमें खर्चा बहुत आएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं $1.85 ट्रिलियन। इसको बैलेंस कैसे करेंगे? टैक्स बढ़ा के। कैसे? Hike in federal public expenditure. The bill proposes to raise revenue via 15% minimum tax on the reported profits of large corporations, clamping down on profit sharing by multinationals, tighter enforcement for large corporations, ultra high net worth individuals, 1% tax on corporate tax buybacks, additional 5% tax on incomes exceeding $10 million a year, and another 3% tax on income above $25 million, and policies to limit business losses for the very wealthy and the 3.8% मेडिकेयर टैक्स। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम इसके लिए आ रही है क्योंकि सीनेट में इसके लिए इनफ सपोर्ट नहीं है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और सीनेट की चेयरमैन हैं उन्हें कास्टिंग वोट डालना पड़े। द नेक्स्ट इज़ अबाउट द चाइल्ड्स न्यूट्रिशन। तो पहले हम इसको एक एक करके देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। वाई? क्योंकि एक तो ये पूरा इशू डिस्कस करता है अंडर न्यूट्रिशन का, जैसे कि हमने ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देखा जिसमें इंडिया की रैंक बहुत ही कम आई है इस बार। 104th है अमंग 17 कंट्रीज़ और सीरियस कैटेगरी में प्लेस किया गया है। द सेकेंड थिंग इज़ दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज़ देयर इज़ अ न्यू स्कीम दैट इज़ प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना और PM पोषण स्कीम। तो दैट्स वाई दिस आर्टिकल इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसने पहले इस आर्टिकल ने ट्रिपल बर्डन की बात की है। ये ट्रिपल बर्डन क्या है? एक तो है अंडर न्यूट्रिशन, खाना नहीं मिल रहा। दूसरा है ओवरवेट या ओबेसिटी, ज़्यादा खाना मिल रहा है। ये दो प्रॉब्लम हो गए। तीसरा प्रॉब्लम है लैक ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सच एज आयरन, जिंक, कैल्शियम एंड सेवरल वाइटामिन्स। ओके, अब अगर हम बात करें कि चिल्ड्रन की जो है, खास करके अगर हम 10 से 12 साल वालों की बात करें तो गर्ल्स जो हैं अगर ग्रोथ स्पर्ट हम देखें, ग्रोथ स्पर्ट मतलब जब जल्दी से ग्रोथ होता है बच्चों का, तो वो लड़कियों में 10 से 12 साल में होता है, लड़कों का 2 साल के बाद होता है। तो सबका जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो ग्रोथ स्पर्ट के टाइम ज़्यादा हो जाता है। अगर वो ना मिले तो ग्रोथ जो है वो कम हो जाता है। देन अगर बच्चे माल नरिश्ड हैं, malnutrition in any form, they can put children and adolescents at risk of compromised immune function and making them vulnerable to infection। उसके बाद social factors भी है। ओके, जैसे कि अगर हम रूरल एरिया में हैं तो वहाँ पे खाने की स्कैरसिटी हो सकती है। अगर हम अर्बन एरिया और एफ्लुएंट क्लास को देखें तो वहाँ पे क्या कहते हैं, कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट था, सोशलाइजेशन नहीं था, जिसकी वजह से स्ट्रेस हुआ और इम्बैलेंस्ड डाइट हुआ। ओके, देन देयर इज़ लैक ऑफ डाइट डाइवर्सिटी विच लीड्स टू इम्बैलेंस्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट। फाइन, जैसे कि आजकल हाई कार्बोहाइड्रेट एंड हाई शुगर फूड्स ज़्यादा लिया जाता है। सो इसको हम कम कैसे करेंगे? वी शुड फोकस ऑन बैलेंस्ड डाइट। उसके बाद हम नए स्कीम पे आ जाते हैं। तो ये नया स्कीम जो है विच इज़ कॉल्ड एज PM पोषण स्कीम, इसका फुल फॉर्म है द प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। इट इज़ द मिड डे मील प्रोग्राम इन इट्स न्यू अवतार and it is for the first time it is going to include the pre-primary section, that is बाल वाटिकाज of आंगनवाड़ी और गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड प्राइमरी स्कूल फ्रॉम क्लास 1 to 8। उसके बाद अगर हम प्राइमरी क्लासेस की बात करें तो इट एम्स टू प्रोवाइड 450 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी एंड 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे। अपर प्राइमरी के लिए हो जाता है 700 किलो कैलोरी एंड 20 ग्राम। अलॉन्ग विद दैट
it monitoring of hemoglobin levels of school children, appointment of nutritional experts to ensure the hemoglobin and growth status are continuously monitored, focus on nutri gardens. ठीक है, these are the welcome steps over here. The next is a reminder from SARS-CoV-2. तो यहाँ पे ये आर्टिकल में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं सिर्फ वो हाईलाइट कर देता हूँ. एक ये पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है जो कहता है कि वायरसेस टुगेदर विद अदर माइक्रोब्स दे स्पीड अप द जीन एक्सचेंज बिटवीन सिमिलर एंड अनरिलेटेड लाइफ फॉर्म्स. ठीक है, फ्रॉम जैसे कि सिमिलर मतलब कि वायरस जो है वो एनिमल में भी है, ह्यूमन में भी चले जाता है, तो उसके जीन्स उसमें ह्यूमन्स में, ह्यूमन के जीन्स एनिमल्स में, ऐसे वो ट्रांसफॉर्म करते रहता है. ठीक है ना. तो अगर अब हम देखें कि आज नियरली 8% ऑफ आवर जीन्स मतलब ह्यूमंस की दे आर यूनिकली वायरल इन ऑरिजिन. वायरल इन ऑरिजिन का मतलब होता है कि वायरस के वजह से ही ये जेनेटिकल चेंज आया है ह्यूमंस में. ठीक है ना. एंड दैट्स वाई वी रिमेन जेनेटिकली सिमिलर इन मैनी वेज. So a virus is capable of crossing over into us, means humans, cause infection because we share some of the genes, proteins and common cellular components. जैसे हम SARS-CoV-2 की बात करें तो SARS-CoV-2 एक ACE2 एंजियोइंस्टाइन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 विच इज़ अ प्रोटीन रिसेप्टर, इसके साथ बाइंड करता है और हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करता है. कैसे? जैसे कि एंगियोटेंसिन जो है ये प्रोटीन हार्मोन है दैट कॉजेज ब्लड वेसल्स टू बिकम नैरोअर एंड इट इज़ वाइटल फॉर मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर एंड फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी. ओके, देन AC2 जो है ये सेवरल एनिमल्स में भी पाए जाते हैं. ठीक है, और हमारे बॉडी में लंग्स और गट्स में पाए जाते हैं. द नेक्स्ट इज़ अबाउट द लिविंग ऑन डेथ रो विद इलनेस. तो यहाँ पे मेंटल हेल्थ की बात की है क्योंकि जो डेथ रो कन्विक्ट्स होते हैं, सो एक स्टडी है विच हैज़ बीन डन बाय नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली विच इज़ कॉल्ड एज प्रोजेक्ट 39A. इसका टाइटल है डेथ वर्दी अ मेंटल हेल्थ परस्पेक्टिव ऑफ द डेथ पेनाल्टी एंड इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट. तो यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया जो है उन 55 कंट्रीज़ में आता है जहाँ पे डेथ पेनाल्टी अभी भी है. ओके, और इसके वजह से जो डेथ पेनाल्टी कन्विक्ट्स होते हैं उन्हें मेंटल स्ट्रेस के थ्रू जाना पड़ता है. ओके, तो यूनाइटेड नेशन कमीशन की हम बात करें ऑन ह्यूमन राइट्स, इट सेज दैट नॉट टू इम्पोज द डेथ पेनाल्टी ऑन पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ मेंटल डिसऑर्डर और एग्जीक्यूट एनी सच पर्सन. तो अगर हम इंडिया में बात करें तो इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस संतोष मारुति माने द बॉम्बे हाई कोर्ट सेड दैट अंटिल it is established that at the time of commission of offense the accused was of unsound mind and incapable of understanding the consequences, till then it is the accused cannot be treated as that he is of unsound mind and his death conviction can be turned to lifetime. बट अगर हम शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस देखें तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दैट मेंटल इलनेस शुड वारंट द कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, बट इसके बावजूद भी ये फॉलो नहीं होता है. देन द रिपोर्ट ऑल्सो हाईलाइट्स अनदर इंपॉर्टेंट एंड निगलेक्टेड एक्सपेक्ट ऑफ मेंटल इलनेस लाइक द सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ मेंटल इलनेस. ओके, देन द नेक्स्ट इज कि सुप्रीम कोर्ट इन बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब हैड लेड डाउन द गाइडलाइंस to be laid before imposing the death penalty, which also includes mental health. So here the author is asking to take a psychosocial approach while avoiding death sentence. The last news is accidental deaths in India has declined. So in 2020 when there was a nationwide lockdown, so the accidental death जो normally roads पे होते हैं it fell by 11% compared to 2019. So road accidents which form a majority of accidental deaths has fell by 14%. So that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, take care. Have a nice day. Thank you.